of you. On behalf of the College of Law, we are going to organize a session, National Science Day. The speaker of the session is Professor S.K. Mahajan, retired science state from CRRI Pilani. Sir has the vast experience of more than 5 decades. He has passed his degree from Pilani. He is the youngest scientist and he is associated with the Dr. APJ Abdul Kalam, Young Fellow of India. I invite Professor on the deliver of topic of the National Science Day. Now the mic to you, sir. Hello, very good afternoon to all my dear law students and law faculty. It is a real privilege to me to be with you once again under the aegis of IISc and College of Law, IMT College of Law. Okay, so the occasion is to celebrate National Science Day. First and foremost thing, why should we celebrate it? National Science Day. This is the day, 28th February, when Dr. C.V. Raman got Nobel Prize. To honor that date, it has been a policy decided by the Government of India to remember this day as National Science Day in the year 2001 or 2, some such time. So thereafter, it has always been 28th February is National Science Day. Now, you are law graduates, for whom this science has got no meaning. You people are more busy with IPC, CRPC and all this thing, Constitution. But here we talk of science. What is the role of science in our day-to-day life? And how science can be useful, or engineering or technology can be useful to law grads or in your judiciary practice. So, if you are working as a practitioner and you have to solve a case of, say, a criminal, a murderer, so in that case, you all think of a dead body, murder weapon, and whatever. फिर कोई forensic lab में dead body को भेजा जाता है. Therefrom, you understand that कि इसको कोकीन का overdose हो गया या इसको poison से मारा गया और ये poison कौन सा था और ये poison कहाँ मिलता है. So that is how the investigation proceeds. So these are the things which are pertinent to even a law graduate. So coming back to C.V. Raman, why we should honor that day? When C.V. Raman was moving to Europe in a ship via sea route, a question struck to his mind: why sea is blue? Samudra नीला क्यों दिखता है? Very simple question, which anybody might ask. There was no theory available till then in physics. Physics में उस समय तक कोई भी इसका explanation, कोई भी theory, कोई भी experimental evidence, laboratory evidence was not available. It was a natural phenomenon, जो कि हमें रोज दिखता है. Sky is blue, ocean is blue. तो पहले हम लोग सोचा करते थे, before that particular research was done, ये सोचा करते थे कि ये sky का reflection पानी में आता है, that's why it is blue. But if you look at our say पानी अपने ग्लास में रखा है या अपने किसी बर्तन में रखा है, उसको आप बाहर रख दो तो वो ब्लू नहीं दिखने लगता because of reflection. So that conjecture went wrong. So C.V. Raman proposed some theoretical background. He wanted to confirm his theory by experimental evidence.
तो उन्होंने ओपन उसके अंदर पेपर में पब्लिसाइज किया कि मेरे को एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप कराना है कि इफ इट सक्सीड्स विद इन 2 years इंडिया विल गेट अ नोबेल प्राइज। तो जीडी बिरला जो उद्योगपति होते थे उस समय, आदित्य बिरला के फोरफादर्स, उन्होंने उनको ब्लैंक चेक दिया, न कि पुट एनी अमाउंट यू लाइक, क्योंकि नोबेल प्राइज सच ए प्रेस्टिजियस ऑनर फॉर एनी कंट्री इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने तो सिर्फ 30,000 ही भरे रुपीज। ये बात है 1928 की, 27-28 की। Somewhere in 1927-28 अब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया उससे थ्योरी और जो कंजेक्चर था इट वाज वेरी वेल प्रूव्ड। जब उन्होंने उसका रिसर्च पेपर लिखा, एंड यू वॉन्ट बिलीव कि उन्होंने कोई भी उनका जो रिसर्च पेपर किसी इंटरनेशनल जर्नल या कोई अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजिक्स वगैरह में नहीं डाला था, इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स में डाला। अब यू वॉन्ट बिलीव, इट इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज कि उस पेपर के आधार पर उनको 2 साल बाद रमन इफेक्ट के ऊपर नोबेल प्राइज मिला 1930, एंड he was the first Indian ever to get Nobel Prize in the field of science or physics, to be precise. तो उसको ऑनर करने के लिए 28 फरवरी को उनको अवार्ड दिया गया था। That's why we always honor this date as a National Science Day. That was a brief historical background. Why should we go for it? हमें इसकी जरूरत क्या है? We celebrate Children's Day to honor Pandit Jawaharlal Nehru and all this. Like that, National Science Day is celebrated. Now the question comes in, why should we know about science and technology? Many times, you law grads, if you have to work on again murder mystery and all this, कि उसके लिए कभी कभी आपको ट्रेजेक्टरी, प्रोजेक्टाइल और इन सब की जरूरत पड़ती है कि गन किस एंगल से फायर किया गया जिससे कि उसके ऊपर लग गया, स्ट्रेट फायर था या एंगुलर फायर था। ये ओनली मैथमेटिक्स एंड साइंस कैन टेल यू प्रोजेक्टाइल एंड ट्रेजेक्टरीज। सो दीज आर दी सम इंपॉर्टेंट इश्यूज। अब दूसरी बात सोचिए, अगर आपके पास साइंस टेक्नोलॉजी न होती तो क्या आज आपके पास मोबाइल होता, लैपटॉप होता? और आई एग्री कि टेक्नोलॉजी के साथ कुछ ग्लिचेस भी होती है जो कि हम जैसे कॉमन मैन शायद नहीं भी जान पाते। जैसे आज एक अराउंड 15 to 20 मिनट लेट हुआ बिकॉज ऑफ आवर इग्नोरेंस ऑन द व्हाट इज इट टू गो टू द लिंक। ओके, बट नाउ आई एम विथ यू। सो इफ यू जस्ट थिंक इंडिया हैज बिकम ए न्यूक्लियर पावर, how come? India has got a supremacy in space. How come? ये सब आपके साइंस और इंजीनियरिंग के कमाल है। आपको ये भी पता होगा कि मून सरफेस पर वाटर है। ये पता कौन से मिशन ने किया था? यू नो, इट वाज मिशन चंद्रयान 1। उसकी वजह से टुडे वी नो कि देयर इज वाटर ऑन सरफेस ऑफ मून। दैट इज है कि नहीं? अच्छी बात। ये आपको लगेगा कि ये नेशनल प्राइड का सेंस भी देती है एट द सेम टाइम दैट वी आर सेलिब्रेटिंग नेशनल साइंस डे। इसी प्रकार देयर आर मेनी फर्स्ट इन आवर इंडियन साइंस, देयर मे बी मेनी प्रॉब्लम्स इन इंडिया, बट जो अच्छी चीजें हैं हम उनको सेलिब्रेट करें, उनको याद करें। तो सीवी रमन हैज बीन द फर्स्ट साइंटिस्ट टू गेट this Nobel Prize. अब इसके अंदर आप सोचिए साइंस डे से रिलेटेड। अब आप कहेंगे कि साइंस और टेक्नोलॉजी, यस, साइंस इज समथिंग डील्स विथ नेचर एंड इट्स एप्लीकेशंस आर इन engineering, in
pharmacy, health, agriculture. There are variety of fields where understanding of science is useful or utilized. अब आप एक बात को सोचिए, last year pandemic 2020, just remember मार्च 22, वो दिन हम में से कोई नहीं भूल सकता जिस दिन पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था. उसके बाद इट वाज ए टोटल लॉकडाउन पीरियड. जब उस समय हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को एक डायरेक्टिव दिया कि हमें अपने कंट्री में वैक्सीन डेवलप करनी है. 8 से 9 महीने लगे वैक्सीन डेवलप और 16 जनवरी 2021 को पहला वैक्सीन लगा. उसके बाद से ओवर 1 ईयर टाइम almost 95% of our Indian population is fully vaccinated, means 2 doses are taken, and that is how we could surmount or survive the third wave, जिसमें कि कोई fatality वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं हुई. It is all again science, and the credit goes to the scientists of India. So we have to be proud of our scientists, our understanding of science, our young talent, those students who have got a flair for science, and they do law courses. Probably they may be more successful. That is my perception. It doesn't mean that who have done BCom and then doing law, they will not succeed. Everybody is successful, but their domain might be taxation and finance related issues. So this science, that is one example. Now, just imagine our mission Mars. What was the cost of it? The cost of mission Mars was less than one film, Hollywood film, that is Gravity or Avengers. उससे कम कॉस्ट थी. जस्ट और पहले अटेम्प्ट में इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जिसको उसकी सक्सेस मिली. मार्स ऑर्बिटल मिशन MOM. और जब उसने अगर आपने देखा होगा मिशन मंगल, दैट फिल्म, यू नो हाउ हमारा जो रॉकेट था इतना पावरफुल नहीं था कि हमको मार्स तक ले जाता. तो फ्यूल कैपेसिटी हमने कैसे बढ़ाई, जस्ट इमेजिन. आप सोचेंगे तो उसके अंदर अगर आपने देखा मिशन मार्स में फिल्म में, आपके घरों में जब गैस खत्म हो जाती है तो क्या किया जाता है, गैस को सिलेंडर को थोड़ा बहुत हिला डुला के, और कुछ तो 3 रोटी तो बनी जाती है तवे पर, या आपकी चाय बन जाती है, ऑमलेट बन जाता है, सो दैट यू आर रेडी फॉर योर ऑफिस. दैट इज व्हाट वाज डन विथ मिशन मार्स. कि जब वो एक्सेलरेशन फेज में है तब फ्यूल ऑफ कर देंगे, और जैसे वो डिसेलरेशन फेज में जाएगा, जब ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रहा है तब मुझे फ्यूल नहीं चलाना, और ग्रेविटी से अपोजिट जा रहा है तब फ्यूल ऑन कर देंगे. तो हमारा जो फ्यूल अगर 4 दिन के लिए था तो वो 8 दिन चला. दैट इज हाउ वी मैनेज टू रीच टू मार्स. So again, it is a scientific innovation, scientific thinking. Unknowingly, हमारे यहाँ घरों में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे यहाँ गृहिणियां करती है, हाउसवाइफ्स करती हैं. They do wonderful science in houses without knowing that they are doing something which is science. Okay, just think now. Another example. जब पेंडेमिक आया फर्स्ट टाइम, दैट वाज समवेयर इन मार्च, जब प्रधानमंत्री जी ने नेशन को एड्रेस किया, क्या कहा उन्होंने? इफ यू रिमेम्बर, हाथ धोएं, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, और काढ़ा पिए रोज. काढ़ा क्या होता है? प्रॉब्ली हम में से हर एक को जब हम छोटे थे सर्दी जुकाम होती थी, हमारी मम्मा, नानी, दादी, कोई भी लौंग का, काली मिर्च का, सौंठ का काढ़ा पिला देती थी और हम अच्छे हो जाते थे.
जब वो उस समय वर्क करती थी तो आज भी वो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। और इस बात को जब मोदी जी ने अनाउंस किया था काढ़ा पी, इस काढ़ा शब्द को उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, उनको नहीं पता काढ़ा क्या होता है, ही गिव्स ए कॉल टू मोदी जी कि व्हाट इज दिस काढ़ा, प्लीज सेंड मी 5 crore काढ़ास टू माय कंट्री सो दैट इम्यूनिटी ऑफ माय कंट्रीमैन विल आल्सो बूस्ट अप। तो उन्होंने डाबर के जो हॉट सिप के पैकेट आता है, दैट इज नथिंग बट काढ़ा, पानी गर्म करो उसमें डीप कर दो और पी लो। तो वो जब इंडिया ने फ्री गिफ्ट करके भेजे थे, एक पावरफुल कंट्री लाइक यूएसए, उस समय यूएसए में क्लोरोक्विन हाइड्रेट नहीं होती थी, शॉर्टेज थी, इंडिया ने भेजी। अब आप सोचिए कि वी आर फर्स्ट इन मेनी थिंग्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ हु कि गवर्नमेंट कौन था, किसने क्या, उससे कोई मतलब नहीं, बट वी हैव टू डेवलप a sense of science and technology and its importance in our day to day life. आज आप देखिए, आप सुनते होंगे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक साल की बुकिंग चल रही है। भाई, आप में से कभी किसी ने सोचा कि भाई दिस शॉर्टेज बुकिंग एक साल की क्यों है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, नॉट ओनली इन आवर कंट्री, वर्ल्ड वाइड? भाई क्या प्रॉब्लम आ गई? It is all due to semiconductor chips. जब हमारे गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स विच ओनली ताइवान, यूएसए एंड सम ऑफ द एडवांस कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप मैन्युफैक्चर एंड हाई एंड चिप्स, नॉट इवन चाइना इज मैन्युफैक्चर। तो चाइना में भी बहुत सी ऑटोमोबाइल कंपनियां बंद हो गई फॉर शॉर्टेज ऑफ semiconductor chips. So recently, a month back, government announced national semiconductor policy. इसके अंतर्गत क्या है? Government want to start 10 design centers, 10 foundries. Foundries means where silicon chips and LED chips will be manufactured, and 2 display units. अभी हमारे कंट्री में बहुत सारे मोबाइल कंपनियां हैं, बट जेन्युइनली मोबाइल मैन्युफैक्चर कितने कर रहे हैं? नन। वी आर ओनली ए असेंबली हाउस। सारे पार्ट्स बाहर से आते हैं और असेंबल करके हम लिख देते हैं सैमसंग मेड इन इंडिया, वीवो मेड इन इंडिया, ओप्पो मेड इन इंडिया। क्या वो रियल सेंस में मेड इन इंडिया है? यहाँ तो सिर्फ असेंबली की गई है। यस, गुड पार्ट इज इट इज प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयमेंट, बट हम वी हैव टू थिंक वन स्टेप अहेड। हमारे जो मोबाइल है उसमें जो सेमीकंडक्टर चिप है, मेमोरी है, लॉजिक है, ये सब चीजें विदेशों से आती हैं। तो जब ये हमारी अपनी होंगी तो आप सोचेंगे आपको ये सब चीजें कितनी सस्ती होंगी। और सबसे बड़ी बात, इट विल स्टॉप ड्रेन ऑफ वैल्यूएबल फॉरेक्स। जो फॉरेन एक्सचेंज ड्रेन आउट होता है वो बचेगा। So the dream of this government, $5 trillion economy, India becoming, is not far away. It is within reach. It will be. Another thing, जब ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज 10 आनी है विदेशों से, तो हर कंपनी को कम से कम 50,000 से 70,000 सेमीकंडक्टर के जानकार इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी। जबकि आज नहीं है हमारे देश में सेमीकंडक्टर के जानकार इंजीनियर। करिकुलम में पढ़ाते हैं, बट दैट बुकिश नॉलेज विल नॉट टेक यू टू रियल मैन्युफैक्चरिंग। तो अभी पीएमओ से जो रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं उनके लिए मैसेज आया था कि टीम बनाइए और स्टूडेंट्स को कैसे ग्रूम किया जाए फॉर सेमीकंडक्टर, सो दैट दे आर रेडी फॉर द कंपनीज। चाइना को प्रॉब्लम क्या है? 1980 में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट अमेरिका वहां ले गए, बट उनके पास कोई मैन पावर नहीं थी चाइना में। उनको 15 साल लगे चाइनीज लोगों को ट्रेन करने में। दैट वे वी आर फॉर्चुनेट
that we Indians have got a far better brain and better understanding and better grasping capacity. तो हम but 10 company into 70,000 7 लाख इंजीनियर्स को तैयार करना सिर्फ एक महाजन अकेला नहीं कर सकता, उसके लिए एक टीम लगेगी डेडिकेटेड, और एक क्लासरूम टीचिंग से भी नहीं होगा, इन हाउस उनको ट्रेनिंग देने पड़ेगी, अपने हाथ से कुछ चीजें करेंगे तब जानेंगे। आपके यहाँ मॉक कोर्ट होती है या विधि महोत्सव होते हैं, ये सब मॉक कोर्ट क्यों लगाई जाती है? क्योंकि वो रियल एक फील देती है। इसी को हम हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी में सिमुलेशन बोलते हैं, कि वो कंडीशंस को सिमुलेट की जाए कि उसको हम कैसे एक्टिवेट करें। आफ्टर दिस नाउ जस्ट थिंक वेयर आर वी अगेन। अभी जो यूनियन बजट दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके फोकल थीम क्या है? अगर आपको ध्यान हो, आज से 10 साल पहले तक बजट का मतलब यह होता था कि टूथपेस्ट महंगे, सिगरेट महंगे, विदेशी शराब महंगी, कपड़े सस्ते, जूते सस्ते, लाइक दैट। इसके बियॉन्ड बजट का कोई मतलब नहीं होता था। बट आज बजट मीन्स इट इज पॉलिसी ड्रिवन, इट गिव्स अ डायरेक्शन। So what is the focal area where our budget is diverted now? 5 domains where budget will give. In this budget, performance linked incentive scheme is announced, PLI. Number 1, any startup going for defense. Number 2, agriculture. Number 3, health sector. Number 4, energy sector. And number 5, pollution. Techno-economics. Pollution. कि जो विजन है कि ये धरती रहने काबिल हो, कार्बन प्रिंट्स कम किए जाएं। तो अब आप सोचिए कि जब इतना सब होगा, इतनी कंपनियां आएंगी, तो उन सबको आप जैसे लीगल एक्सपर्ट्स भी लगेंगे, क्योंकि आपके यहीं से जो यूनिकॉर्न बनती है, दैट इज $1 बिलियन कंपनी, वो इन्हीं स्टार्टअप में से तो ऊपर जाती है। आज हम बात करते हैं सोलर सेल, एनर्जी इज वन ऑफ द सेक्टर। अगर आप में से कोई भी उत्सुक हो स्टार्टअप करने के लिए, 25 लाख रुपए का फंडिंग मिल जाएगा एमएसएमई या किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी से। टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल, आप लोग शुरू कीजिए। यू कैन प्रोड्यूस 1000 वॉट्स इन अ डे, 1000 वॉट के इक्विवेलेंट सोलर सेल, और each watt saves 4 rupees. So 1000 watt will be 4000 rupees per day. It is your profit apart. इसके अंदर आपने सैलरी, ओवरहेड सब काट दी, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, लॉजिस्टिक, टैक्स, सब कुछ कट गया। So you are having drive for 1000 rupees. So in a month, 25 दिन का महीना मान लो आप, तो कितना हो गया? 1 लाख रुपया एक महीने में आपको मिलता है। आप भी कमाते हैं और आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो ड्रेन होने से बचता है इस कंट्री का। तो जितना आउटफ्लो कम होगा फॉरेक्स का, उतनी जल्दी हम 5 ट्रिलियन को टच कर लेंगे। तो जब ये कंपनियां होगी तो आप जैसे लीगल एक्सपर्ट्स की जरूरत तो पड़ेगी। सब जगह आईपीआर, सब जगह एचआर रिलेटेड इश्यूज, सभी चीजें आएंगी, या वुमेन्स ग्रीवेंसेस सेल, सेक्सुअल हैरेसमेंट, इन सब के लिए दैट इज वेयर यू माय डियर लॉ ग्रेजुएट्स विल बी रिक्वायर्ड एज ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स एटसेट्रा। नाउ इन the domain of say agriculture, how can we be very in the domain of agriculture? अभी गवर्नमेंट ने एक और अनाउंस किया है बजट में, ड्रोन्स का इंपोर्ट बंद कर रही गवर्नमेंट। ड्रोन 10 मिनट
सो ड्रोन्स का इंपोर्ट बंद कर दिया। अब जो भी स्टार्टअप कंपनियां हैं जो ड्रोन बनाती हैं, अब आप कहेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हुए ड्रोन पे कैसे आए? अब ड्रोन के दो उपयोग हैं। एक तो पहले डायग्नोसिस की क्रॉप को कोई बीमारी है या हेल्दी क्रॉप है। जब इंसान को स्वास्थ्य खराब होता है तो उसका पहला सिम्टम क्या होता है? उसको बुखार आता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। दैट इज अ मेजर इसको तबियत ठीक नहीं। इसी किस्म से जब गेहूं की क्रॉप या एप्पल की क्रॉप खराब होती है तो उनका भी टेम्परेचर बढ़ता है और वो ड्रोन से थर्मल इमेजिंग के थ्रू हमें पता चलता है कि इस 10 स्क्वायर मीटर के एरिया में यह वाला गेहूं इसको कीड़ा लग गया, ये बीमार हो रहा है, तो उस डोमेन में वो पेस्टिसाइड छिड़काव कर देगा। अब आप सोचें कि हाथ से छिड़काव करेंगे तो सब जगह पेस्टिसाइड जाएगा, मेरे को सब जगह तो देना ही नहीं। जो स्वस्थ है उनको थोड़ी दवाई दूंगा, जो बीमार है उन्हीं को दवाई देना है। तो ये ड्रोन के थ्रू थर्मल इमेजिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल डिसाइड। अभी पिछले पेंडेमिक के दौरान एक कमी हुई थी, ऑक्सीजन की बड़ी शॉर्टेज। सबने टीवी पे बहुत सुना, बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ, ये ऑक्सीजन की कमी से चल बसे, ये हुआ वो हुआ। बट आज स्थिति यह है कि आपके ही अपने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बना दिया, एंड यू वॉन्ट बिलीव इट इज सो चीप दैट 45,000 रुपए में, दैट इज रॉ मटेरियल कंजम्पशन कॉस्ट, आपको 15 लीटर पर मिनट के ऑक्सीजन दे सकता है विद अ प्योरिटी ऑफ 92%। अब आप सोचिएगा कि ये आप ही लोग हैं, आपके ही कलीग्स इंजीनियरिंग के हो या फार्मेसी के हो, दे कैन डू वंडरफुल वर्क। अब इसको सीधा कोरिलेट करते हैं हेल्थ सेक्टर से। अब इसी प्रकार नई नई ड्रग्स के बारे में हमारे फार्मास्यूटिकल के स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग भी अपने लॉ कॉलेज में ये सोचिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे नई नई और क्या इवेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच वी कम अक्रॉस। जैसे अभी अहमदाबाद में 38 लोगों को एक साथ मौत की सजा सुना दी और 11 लोगों को आजीवन कारावास। इसके ऊपर एक लीगल डिबेट आप लोग मॉक कोर्ट या कोई भी इस तरह का ग्रुप डिस्कशन में कर सकते हैं। फॉरगेट अबाउट पॉलिटिक्स। बट वो आतंकवादी थे, उन्होंने मारा तो उसकी सजा उनको मिली। तो आई थिंक देयर इज इनफ फॉर द डे। इफ एनी क्वेश्चंस प्लीज फील फ्री टू आस्क। थैंक यू वेरी मच। नो क्वेश्चंस? Okay, thank you, sir. हाँ, Now it is a time. The session is open for the participant. If anybody having have any doubt regarding the session, they can ask from our learned guest, Professor S.K. Mahajan, on the National Science Day. any question, feel free to ask. Yes, if anybody can ask the questions about the, sir has taught about the science, technology, or how the law is related to the science, and what are the factor. I think participant query has been sorted out by your learned your thoughts, sir. So now I propose the vote of thanks on the behalf of IMD College to our learned guest, Professor S.K. Mahajan, sir, who is a renowned person in the field of science and technology. So again, I propose, thank you, sir, for your wonderful session. Thank you very much. Thank you, sir. It's my pleasure. Thank you.